পয়সা পয়সা দেয় না আর কি হবে। চলো, let us start. See, today we will be starting temperature stresses. Okay, temperature stresses. So, as I said, there are two reasons for development of stresses due to temperature in a your what in rigid pavement. Okay, one is due to change in or we can say variation, difference in temperature between the top layer and the bottom layer of the slab. That is, within the slab itself there will be thermal change, temperature change. Okay, and the stress which is developed in such case is known as the warping stress or curling stress. There are two conditions. One is warping down, warping up cases, okay, which we have already discussed. See, this is warping down, warping up. But we should remember the nature of the stresses which is developed within the slab. Okay, in case of warp down condition, what happens? See here, the upper portion, the upper surface of the slab, okay, it tries to get tension is generated here. Okay, from externally tension will be applied, whereas at the bottom layer compression will be applied. But in order to resist those stresses, internally opposite stress will be developed within the slab. Okay, we have to consider this stress is known as the warping stress, the stress which is developed within the slab because of some external changes. Okay, because of due to external factors, that is known as the stresses. Okay, or we can say the resistance which is developed. See, in case of warping down in the upper layer, internally compression is occurring at the upper layer, and in the bottom layer tension is occurring. Okay, whereas vice versa in case of warp up condition. So we must remember this condition कि कहाँ पे तुम्हारा, in which case compression is generated and in which case tension is generated. Okay, why? Because when we will do combination of stresses due to loading, due to temperature variation, okay, or whether it is diurnal variation or seasonal variation, we have to add all the stresses, or we can say we have to combine all the stresses which will be developing in the slab. Okay, and find which is the critical combination. Critical means the worst combination. Okay, because more the stress it is developed, that means what, there will be the chance of failure in the slab. Stress की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ये cracks develop हो सकता है, mainly due to tension, because slab is made up of concrete and we know it can tackle the compression very easily because it is good in concrete compression. Yeah, but in case of tension or tensile stress, concrete is weak. Okay, so we have to consider mainly the tension condition. So for that we must know in which condition what type of stresses are developed within the slab. That is important. That's why I am showing with the help of diagram. See, in case of warp down condition, which this is the case, and in case of warp up condition, this is the case. Okay, now but today's topic was your seasonal variation. That means the temperature stress, or we can say the stress which is developed due to variation in temperature in a season wise. Season wise means in summer and in winter. Okay, whereas this warping stress was in during day or during night, like that. Okay, but in case of this stress, that is the frictional stress, it is during summer what kind of stress is generated, and during winter what kind of stress is generated. Okay, but both these stresses are developed due to temperature. That's why the whole thing comes under the temperature stress only. Okay, now see, and we have, and the equation which we are using for calculating warping stress is Bradbury's equations. Okay, and we have solved this equation, and for the equation these are the factors, or we can say these are the constant which must be calculated. Okay, which must be developed or which must be determined. In order to determine this cx and cy value, we have to determine lx and this ratio lx by l or ly by l. This I have already explained what is l, what is lx. Okay, and these are the three formulas for interior, edge and corner. Okay, now today's topic is the frictional stress. Okay, frictional stress, this is due to seasonal variation in temperature. Okay, now see here, this is the main formula, you can note it down. Okay,
This is the formula of the frictional stresses, or we can say resistance against the frictional force. Okay, or the stress developed to resist the action of friction. देखो, जब फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, वी हैव टू सी इन द स्लैब व्हेन योर फ्रिक्शन विल ऑकर. ओके, वो पहले जानना है. ठीक है. एंड सिंस वी आर कंपेयरिंग दिस विद द सीजन, मतलब ये सीजन के अंडर में आता है, विद इन समर और ड्यूरिंग विंटर. ऐसा तो कहाँ पे आ सकता है ये फ्रिक्शन? ड्यूरिंग समर में कैसा फ्रिक्शन जनरेट होता है, ड्यूरिंग विंटर कैसा फ्रिक्शन जनरेट होता है. ओके, सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो इनसाइड द स्लैब some stresses will be developed, that is called the frictional stress. Please remember कि ये सब क्या है, resistances है. ये stresses are, it is generated inside the slab. ओके, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस आ रहा है या जो भी है उसको रेजिस्ट करने के लिए इंटरनल में क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है. सो ऑल दिस थिंग्स आर द स्ट्रेस, एंड सिंस all these stresses are developed due to change in temperature, that's why it is known as temperature stress. Okay, now see SF, this is the formula, frictional stress. Okay, here see gamma C is what? It is the unit weight of the concrete, kg per meter cube. And also in this formula, see here, this is these values are given, right? 2 into 10 to the power 4. Okay, so why these values are given? नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यूज, मतलब ये वैल्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये रैंडमली जनरेट नहीं हुआ. वी हैव टू डिराइव, और वी कैन इजीली डिराइव दिस इक्वेशन. ओके, एंड व्हाइल डिराइविंग वी विल सी दैट कि इसका शायद केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है. सो यू मे थिंक दैट इसका भी समथिंग पर सेंटीमीटर में होना चाहिए. यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है? इट्स लाइक अ डेंसिटी. ओके, सो केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है, सो केजी पर मीटर क्यूब, गामा सी इज यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. ये वाला इक्वेशन का इसमें क्या है? केजी पर मीटर क्यूब. बट द whatever value we will get after using this formula, SF का वैल्यू जो भी आएगा उसका यूनिट क्या होता है? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये पूरा का वैल्यू इट विल बी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये याद रखना है. सी, अब तुम बोल सकते मैम ये तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको केजी पर सेंटीमीटर में क्यों नहीं रखा है? ओके, सी व्हेन वी विल डिराइव यू विल इजीली सी कि हमने सब कुछ कन्वर्ट करके ये वाला वैल्यू हमको मिला है 2 इंटू 10⁴. ठीक है, तो ये देखेंगे कि कैसे आ रहा है. एल, एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ द स्लैब इन मीटर. देखो ये भी मीटर में है. ओके, एफ इज व्हाट? सिंस देयर इज अ टर्म फ्रिक्शन, सो ये एफ है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन. देखो नाम से पता चल रहा है कहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है. It is friction will be generated between the slab and the subgrade. ठीक है, so वहाँ पे जो coefficient of friction हम use कर रहे हैं that is F. Okay, which is if it is in many question they won't give you the value FF, in that case we have to assume it. Okay, which is 1.5. ठीक है, and gamma C also in many cases they won't give you, and we know for unit weight of concrete in kg per meter cube is 2400 kg per meter cube. Okay, अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द स्लैब और स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, हम ये बोले थे पहले भी बोले थे, राइट? जब तुम्हारा ये जो है एलएक्स, एलएक्स जो है ना, एलएक्स, दैट एलएक्स इज और एल, एलएक्स या एल होगा. ओके, देखो ये एलएक्स कहाँ पे है? इट इज इन दिस एक्स डिरेक्शन. तो एक्स डिरेक्शन में क्या आता है? देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट. ठीक है, so sometime your capital L value is what? It is said that it is the either length of the slab or it is the contraction joint interval. मतलब ये contraction joint है, ये दूसरा contraction joint है, तो इसके बीच का gap interval. ठीक है, तो please remember in questions they will give you like this. Okay, तो so this is the main equation. Now let us see how we can derive this equation. ऐसे याद करोगे तो ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी हमको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आ रहा है ये वाला. ओके, अब ये उसके लिए लेट अस ड्रॉ अ सेक्शन. ठीक है, ये है स्लैब, कंक्रीट का एक स्लैब हमने ले लिया, या वी कैन से कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट था, फिर कुछ डिस्टेंस में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट था, तो वो हमने एक स्लैब पकड़ लिया है.
ओके उसका एक पोर्शन हमने पकड़ लिया, दो कॉन्ट्रैक्शन बीच का जो भी पोर्शन ऑफ द स्लैब है वी आर कंसिडरिंग दिस वन. ओके सो द लेंथ इज एल. ओके दिस इज व्हाट, दिस इज द एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइन यहाँ पे है, एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइन यहाँ पे है. सो contraction is a transverse joint. Transverse मतलब if the direction of the traffic is in this direction, मतलब ऐसे गाड़ी मूव हो रहा है. ओके एक स्लैब ले लिया है, स्लैब का टुकड़ा, रास्ता का एक टुकड़ा ले लिया है एंड योर व्हीकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, मतलब कि ये जॉइंट्स इज परपेंडिकुलर और वी कैन से दिस इज अ ट्रांसवर्स जॉइंट. ओके तो ये ट्रांसवर्स जॉइंट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ऑल्सो. ठीक है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को ट्रांसवर्स जॉइंट भी बोलते हैं. इसीलिए जो है कि एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से दूसरे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का गैप इज द इंटरवल विच इज एल. ओके या इन मेनी क्वेश्चन दे विल गिव यू एज लेंथ ऑफ द स्लैब. ठीक है तो ऐसा दे देगा. नाउ and this is the width of the slab. okay this is your width of the slab. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है width of the slab which is b मीटर. देखो यूनिट याद रखना, l मीटर, b मीटर. ओके ठीक है अब देखो हम बोले थे दिस इज अ टेम्परेचर, मतलब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, राइट, विच इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस. ठीक है तो अब टेम्परेचर स्ट्रेस कब होता है, हम बोले थे सपोज ड्यूरिंग विंटर. यहाँ पे जो डायग्राम है इट इज एन एग्जांपल ऑफ विंटर सीजन. ठीक है अब समझो ड्यूरिंग विंटर व्हाट विल हैपन, स्लैब कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक्सपांड करता है, एनीथिंग. विंटर में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन विल ऑकर. ओके सो सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्लैब इज ऑकरिंग, मतलब ये स्क्वीज हो रहा है, राइट, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से स्क्वीज हो रहा है. ठीक है नाउ स्क्वीज हो रहा है मतलब क्या, this portion of the slab is trying to move in this direction and this portion of the slab is trying to move in this direction. ठीक है so whenever and below the slab is what, subgrade. ये slab के नीचे क्या है, subgrade है. ठीक है so whenever an object tries to move, तो क्या होता है, whenever an object tries to move तो क्या होता है बोलो, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करता है, ठीक है, और नीचे तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब कोई सरफेस है, ऑब्वियसली दैट सरफेस इज व्हाट, रफ. ठीक है स्मूथ नहीं है एकदम वाटर की तरह, वैसा नहीं है, इट्स रफ. ओके सो क्या जनरेट होता है बोलो, बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस सरफेस विच काइंड ऑफ फोर्स इज जनरेटेड, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है अब देखो ये स्लैब इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है तो फ्रिक्शन किस तरफ करेगा, इन दिस पोर्शन ऑफ द स्लैब फ्रिक्शन विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन. ये स्लैब नीचे देखो, नीचे ऐसा मूव कर रहा है स्लैब्स. ठीक है नीचे क्या है, ग्राउंड है, मतलब सबग्रेड है. तो फ्रिक्शन विल ट्राई टू एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना, तो यही तो है देखो, इट इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द स्लैब. सिमिलरली फॉर दिस स्लैब क्या हो रहा है, ये हाफ ऑफ द पोर्शन इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, इस तरफ स्क्वीज होने का कोशिश कर रहा है. सो अगेन फ्रिक्शन, मतलब कि ये स्लैब इस तरफ मूव हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है मतलब मूव हो रहा है. ओके सो फ्रिक्शन विल ट्राई टू जनरेट ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन. तो कहाँ पे है, यहाँ पे है. ठीक है ये है ड्यू टू चेंज, इट इज टेम्परेचर चेंज, इट इज ट्राइंग टू चेंज, मतलब क्या है, इस वाले का और इस वाले का, मतलब एटमॉस्फेयर और स्लैब का अगर सेम टेम्परेचर होता तो ये स्क्वीज भी नहीं होता, एक्सपांड भी नहीं होता, राइट. सिंस द कंक्रीट स्लैब टेम्परेचर इज, or we can say the atmospheric temperature is colder, that means it is lesser than this temperature. ठीक है सो इट इज ट्राइंग टू स्क्वीज, ये स्लैब स्क्वीज करने का कोशिश कर रहा है. ओके सो व्हेनेवर इट इज ट्राइंग टू स्क्वीज वी हैव टू सी दिस हाफ एंड दिस हाफ, ऐसे क्योंकि दोनों तरफ से स्क्वीज होता है. ओके तो इस हाफ जब स्क्वीज हो रहा है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, और ये वाला पोर्शन जब इस तरफ डायरेक्शन में स्क्वीज होने का कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. नाउ एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस स्लैब, कौन सा एक्चुअली फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है इस स्लैब के ऊपर, which force is acting, external force,
कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ये स्लैब में, बोलो एक्सटर्नली। हेलो, বলো অ্যাকচুয়ালি কোন ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে, তাহলে কোন ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে এই স্ল্যাবে বাইরে থেকে? হ্যালো, এম আই অডিবল? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কি হলো, কারেন্ট গেল নাকি? ইয়েস ম্যাম, শুনে যাচ্ছি। তাহলে বলো কোন ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্ট করছে এক্সটার্নালি এর উপর, স্ল্যাবের উপর? फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। एक्सटर्नली तो फ्रिक्शनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, मतलब सरफेस और सबग्रेड के बीच का जो है, मतलब बॉटम सरफेस एंड द सबग्रेड के बीच में, ठीक है। नाउ स्लैब विल व्हाट, तो फिर इंटीरियरली क्या हो जाएगा कि ये फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए सम स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड इनसाइड द स्लैब, ठीक है। ये इनसाइड द स्लैब ये फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेस डेवलप होता है, एंड विच विल बी ऑब्वियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसका एक्स अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है। इसके अगेंस्ट में इस डायरेक्शन में एक फोर्स और वी कैन से एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके अगेंस्ट में यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये F1 है तो ये 1 हो गया है, अगर ये F2 है तो ये 2 हो रहा है, ओके। सो इस फोर्स के अगेंस्ट में इस तरफ हो रहा है SF2, और इस फोर्स के अगेंस्ट में इस तरफ एक्ट कर रहा है SF1, ओके। नाउ अब बोलो इंटरनली स्लैब के अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, कंप्रेसिव या टेंसाइल? या वी कैन से कंप्रेसिव होता है, या वी कैन से कि ये वाले सेक्शन पर कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू SF। ये अगर ये वाला तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, तो एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, सो कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ऐसा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इन दिस सेक्शन। दे आर मूविंग आउटवर्ड, राइट, ये आउटवर्ड की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो मतलब ये कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव, टेंसाइल। टेंसाइल, राइट। तो ये क्लियर है। सो कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, विंटर में हो रहा है, ओके। प्लीज रिमेंबर ये कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है, विंटर में हो रहा है, तो ड्यूरिंग विंटर का कंडीशन हम बोल रहे हैं, ओके। और वेरएज तुम्हारा समर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि विंटर में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करने का कोशिश कर रहा है, मतलब इट इज ट्राइंग टू स्क्वीज, और वी कैन से इट इज ट्राइंग टू मूव इनर, राइट, मूव इनसाइड। तो मूव जब होता है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन इज जनरेटेड इन द आउटसाइड डायरेक्शन विच इज दिस वन, फॉर दिस ये वाला है, ओके, फॉर दिस ये वाला है, ठीक है। अब देखो ये है एक्सटर्नल फोर्स जनरेटेड, स्लैब और इसके बीच में एक्सटर्नल फोर्स ये जनरेट कर रहा है। नाउ इंटरनली टू रेजिस्ट दिस फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ये SF एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि इसको और अच्छे से हम बनाएंगे, ओहो, तो होगा तुम्हारा सी कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट द फोर्स, ओके। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज नॉट द फोर्स, प्लीज इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। ये कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो व्हेनेवर इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन तुम्हारा फोर्स विल बी जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, एंड इन ऑर्डर टू resist this external force some internal stresses will be developed which will be in opposite to this direction, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो इस वाले का अगर हम करेंगे कि ये मूव होने का कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको रेजिस्ट करेगा ये वाला, ठीक है, सॉरी इसको रेजिस्ट मतलब इसको फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट टू द मूवमेंट, और इसके अगेंस्ट में जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है विच इज दिस वन,
ठीक है। एंड इफ यू कंसिडर दिस सेगमेंट और इफ यू कंसिडर दिस सेक्शन, तो इस वाले सेक्शन में देखो ग्रीन और पिंक कलर का मिलाकर क्या कर रहा है, इट इज आउटवर्ड वाला एरो है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, टेंसाइल जनरेट हो रहा है इन केस ऑफ विंटर सीजन। ओके, सो यही स्ट्रेस हमको चाहिए, यही स्ट्रेस देखो, दैट्स व्हाई इट इज सेड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस रेजिस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, इंटरनल स्ट्रेस रेजिस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दिस SF है। And during winter it is tensile in nature, whereas in winter summer it will be compressive in nature। ठीक है, क्लियर, क्लियर टिल हियर। हाँ मैम। यस मैम। अब ये देखो, अब दिस इज द डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। ओके, मतलब कि अगर ये वाला स्लैब अगर हम पकड़ेंगे, ठीक है, तो इसका ये एक्स एक्सिस इज व्हाट, इट इज द लेंथ ऑफ द स्लैब। ठीक है, मतलब ये वाला लेंथ कौन सा है, ये एज है। ठीक है, जैसे जैसे हम इनवर्ड में जा रहे हैं, दैट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे आके ये मिड पोर्शन में हो जा रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ से देखो ये है लेंथ ऑफ द स्लैब, दिस इज द एज या वी कैन से कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर से अब जैसे मूव होता होता जा रहा है, ये सेंटर में आ रहा है। सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब, यहाँ से लेकर यहाँ तक है टोटल लेंथ। ओके, वेयर एज दिस एक्सिस जो भी वाई एक्सिस में है, ये वाला क्या ग्राफ कर रहा है, दिस इज द स्ट्रेस ग्राफ, मतलब SF का ग्राफ। इफ विल प्लॉट SF, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ फ्रॉम कॉर्नर टू द मिडल, इट विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये देखो जीरो में SF जीरो है। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं मिडल सेंटर में, इट इज मैक्सिमम एट द मिडल। सिमिलरली इस वाले कॉर्नर में SF जीरो है। अब जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, SF का वैल्यू बढ़ रहा है। देखो अगेन मैक्सिमम पहुंच गया, एट द सेंटर इट इज मैक्सिमम। तो हमको यही SF चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेस चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जीरो क्यों है, बोलो तो SF क्यों जीरो है, वाई SF वैल्यू इज जीरो हियर, बिकॉज we said this SF is generated to resist friction। ठीक है, ये वाला SF क्यों जनरेट हो रहा है, ये वाला SF, this SF why it is generating to resist the friction, ये वाला SF क्यों जनरेट हो रहा है, to resist the this वाला friction। ठीक है, और ये वाला SF क्यों जनरेट हो रहा है, to resist this वाला friction। ठीक है ना। now tell me at the corner why this SF value is zero। फ्रिक्शन कम बोले, हाँ, फ्रिक्शन तो नहीं बोले कॉर्नर में। yes, at the corner what happens, it is free to move। ठीक है, तुम खुद ही देखो, तुम एक कोई क्या बोलते हैं, मतलब कोई स्क्वीज होने वाला, ठीक है, जैसे कोई तुम स्पॉन्ज ले लो, ठीक है, एट द कॉर्नर तुम ऐसे प्रेस करो तो क्या होगा, वो इजीली स्क्वीज होता है। बट जैसे जैसे हम इनर की तरफ करने जाएंगे तो वी आर स्टार्ट टू फील रेजिस्टेंस, राइट, कुछ फोर्स हमको ऐसा कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन कॉर्नर में क्या होता है, इट विल इजीली मूव, तुम्हारा हाथ इजीली स्क्वीज हो जाता है। ओके, यू विल इजीली मूव इन दिस डायरेक्शन, यू विल इजीली मूव इन दिस डायरेक्शन इन द कॉर्नर। बट एज यू गो इनर, जैसे जैसे और अंदर की तरफ जाओगे, यू विल स्टार्ट टू फील रेजिस्टेंस, तुमको थोड़ा लगेगा कि हार्ड होता जा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस कॉर्नर क्या होता है, इट इज फ्री टू मूव। तो जहां पे फ्री टू मूव होता है, मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, एक्चुअली स्मूथ नहीं है, बट इट इज एक्टिंग एज इफ सरफेस बहुत स्मूथ है, इसलिए फ्रीली मूव कर रहा है। ओके, देर इज नो रेजिस्टेंस, दैट मीन्स देर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। सो जैसे जैसे हम इनर में जाएंगे, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और SF का वैल्यू भी बढ़ेगा। दैट्स वाई ये वाला ग्राफ इट इज सी, यहाँ पे जीरो है, मतलब फ्रिक्शन जीरो है, दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज ऑल्सो जीरो, सो इट इज जीरो हियर, SF जीरो है। अब जैसे जैसे इनर में जाओगे, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, SF भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये वाला क्यों बोले हैं, वी विल सी, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए था, कॉर्नर एज और इंटीरियर का से काम करना है, राइट। कॉर्नर एज इंटीरियर में लोडिंग कंडीशन की वजह से कैसा स्ट्रेस होता है, वार्पिंग स्ट्रेस कैसा होता है, सब कुछ डिफाइन करना है। ओके, देन ओनली वी कैन सी द कॉम्बिनेशन। सो कॉर्नर में मेनली this SF value will be zero, that means there will be no frictional stress, okay, or we can say resistance against frictional stress at the corners। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस सेक्शन। इसका हमको एरिया चाहिए। ओके, जब वी विल कैलकुलेट SF, दिस SF इज एक्टिंग ऑन दिस रेजिस्टेंस सेक्शन। ओके, तो रेजिस्टेंस सेक्शन का हमको एरिया बाद में लगेगा। ओके,
तो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू बी विच इज नथिंग बट व्हाट, a इंटू बी इज व्हाट, a इंटू बी इज द, ये कौन सा लेंथ है, a इंटू बी, b मीटर, ओके। वेरस b c क्या हो जाएगा, b c दिस इज योर h, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस सेक्शन इज व्हाट, कैपिटल B इंटू स्मॉल h, कैपिटल B मीटर में है, h है तुम्हारा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमको ये कन्वर्ट कर देना है, सो योर h वैल्यू विल बी बाई 100, ओके। इसीलिए फॉर्मूला में देखना क्या आता है, 2 इंटू 10⁴ ये सब आ रहा है, वी विल सी, ओके। सो एटलीस्ट वी हैव टू कन्वर्ट एरिया निकालने के लिए, तो एटलीस्ट इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है या इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। दिस इज बी मीटर, दिस इज h सेंटीमीटर। सो ए बी सी डी एरिया विल बी कैपिटल B इंटू h बाई 100 या B इंटू 100 बाई h इंटू h, ये हम देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द डिराइवेशन। देखो अगर हम बड़ा करके देखेंगे इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्टिंग अगेंस्ट ऑन दिस रेजिस्टिव सेक्शन जिसका लेंथ है b मीटर, हाइट है तुम्हारा h सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे देखो रेजिस्टिंग सेक्शन का एरिया क्या है, b मीटर इंटू हाइट सेंटीमीटर में, तो हमने b को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सो एरिया इज व्हाट 100 BH सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 BH सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद सो ये एरिया हमको लगेगा वाइल डिराइवेशन। अब आते हैं डिराइवेशन में, सी, ठीक है। अब देखो फॉर डिराइवेशन वी विल कंसिडर हाफ ऑफ द स्लैब, मतलब इस तरफ जो स्लैब था उसको काट दिया, अब हमने सिर्फ ये हाफ ऑफ द स्लैब ले लिया, मतलब ये वाला एरिया ले लिया, वी आर टेकिंग ओनली दिस वॉल्यूम, ओके। तो देखो ये वाला वॉल्यूम हमने यहाँ पे बिठा दिया है। सो टोटल लेंथ वाज कैपिटल L, अब ये हाफ ले लिया तो L/2 मीटर, h सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ विथ ऑफ द स्लैब विच इज डिनोटेड बाय b मीटर, ओके। तो फ्रिक्शन वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो स्ट्रेस इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। अब कुछ करना नहीं है, हमको क्या चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, एंड ये जो स्ट्रेस डेवलप है उसका फोर्स निकालो, इक्वेट कर दो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों को इक्वेट करके वी हैव टू डिराइव दिस ऐसे फॉर्मूला। सो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अगर हम इसको और बड़ा करेंगे तो तुम लोग ही बोलो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमको बोलो। यहाँ पे हम ये हटा दिया। सो यू हैव टू कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स, ये F का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ से F का वैल्यू क्या था, कैपिटल F इक्वल्स टू क्या होता था, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सरफेस, सॉरी दिस इज अ सरफेस, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, तो तुम्हारा यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है। योर फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन कैपिटल F, ठीक है। और इसका तुम्हारा ये है कैपिटल F फोर्स, ओके। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम बोल रहे थे क्या है, स्मॉल f, एंड इसका वेट, ओके, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट से इट इज, वेट कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा ना ऐसे ही, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज W, okay. Now tell me what is the formula of F. F का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम इसको म्यू लिखें और इसको अगर हम कैपिटल N लिखते, ठीक है, तो कैसे लिखते थे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू N लिखते थे ना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन है, ठीक है, म्यू इंटू N लिखते थे, वेर N इज नथिंग बट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, म्यू इंटू W, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू के जगह पर F लिख दो, ये वेट लिख देते हैं। सो हियर योर कैपिटल F विल बी F इंटू W, ओके। W इज व्हाट, वेट ऑफ दिस स्लैब,
ठीक है, अब ये इसका वेट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बोलो, हाउ वी विल कैलकुलेट द वेट। एफ हमको एक कोफिशिएंट है, इट विल बी नोन टू अस और गिवन टू अस। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ डब्ल्यू, दैट मीन्स द वेट ऑफ दिस क्यूबॉइड। सो व्हाट इज द वेट, हाउ टू कैलकुलेट द वेट। फर्स्ट टेल मी ये क्या है, ये किस चीज से बना है, किस चीज से बना है ये स्ट्रक्चर, कंक्रीट। कंक्रीट से, ठीक है। अब वेट हम कैसे निकालेंगे, ये लेंथ हमको पता है, ये हाइट हमको पता है, ये ब्रेथ हमको पता है। यस, वी नो द वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब एंड वी नो इट इज मेड अप ऑफ कंक्रीट, सो वी आल्सो नो व्हाट इज द पर यूनिट वेट, मतलब एक वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का कितना वेट है ये हमको पता है, ठीक है, फॉर कंक्रीट। एंड वी नो द टोटल वॉल्यूम, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इट इज रिटन एज F इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। यूनिट वेट हमने बोला कैसे डिनोट करते हैं, गामा सी से। ओके, कंक्रीट का यूनिट वेट। ना वॉल्यूम हमको पता है कितना, दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। इसका यूनिट कितना था, इसका यूनिट था केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इट वाज इन मीटर क्यूब। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम देन, इट शुड बी आल्सो इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम रखना है, तो अगर हम मीटर क्यूब में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ तो यूनिटलेस है, ठीक है। वॉल्यूम विल बी L/2, लेंथ मीटर में है, ओके, इनटू ब्रेथ इज आल्सो इन मीटर, ओके, बट हाइट इज इन व्हाट, हाइट इज इन सेंटीमीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। तो उसके लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, सो दिस इज द वॉल्यूम, ये टोटल है वॉल्यूम इनटू गामा सी, ठीक है। तो देखो सबका क्या है यूनिट, ये भी मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर मीटर मीटर, एंड दिस आल्सो इन मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इनटू केजी पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब कट गया तो बचा क्या, केजी। सो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, केजी में, विच इज दिस वन, देखो नीचे है, क्या हो रहा है, सी, ओके। So F L/2 B into H by 100 into gamma C. It's in kg. Clear? How we derive this formula? This is volume into density. ठीक है, is giving the weight into F will give the force. ये clear है? How we get this value F? बुझते पेरेছো? Now this is the external force which is developed due to temperature change, season temperature change, ठीक है। Now in order to resist this frictional external force, some internal stress is developed within the slab opposite to the direction of this force. Okay, मतलब इस direction में ये act कर रहा है, SF क्या stress generate कर रहा है। तो what is the force developed due to this stress then, ये तो stress है, ठीक है, तो हमको force चाहिए, तो force stress area. yes, now see in which area this is acting, this stress is acting in this ABCD area and this area is nothing but the resisting area। हमने पहले इसका इक्वेशन निकाल लिया था फॉर्मूला, मतलब AB इंटू BC, AB इज B मीटर, BC इज H सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया क्या है, ये हैश पोर्शन का एरिया क्या है, B मीटर इंटू H सेंटीमीटर। तो इसको हमको अब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, ये वाला एरिया, ओके, ये निकालेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू H सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेजिस्टिंग सेक्शन, तो देखो टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन रेजिस्टिंग सेक्शन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस विच इज SF, ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन विच इज दिस वन, B इंटू 100 इंटू H, ठीक है। ये जो है B इंटू 100 है सेंटीमीटर में, ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू H, ठीक है। एंड S यूनिट इज व्हाट, SF यूनिट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, kg। तो देखो दिस फोर्स इज ऑल्सो इन kg, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स डेवलप हो रहा है दिस इज ऑल्सो इन kg।
Now we have to equate these two equation, this वाला and this वाला. सेम है ना, इसको रेजिस्ट करने के लिए तो ये स्ट्रेस डेवलप हो रहा है एंड द फोर्स विल आल्सो रेजिस्ट दिस वन ओनली, राइट? फोर्स डेवलप ड्यू टू दिस स्ट्रेस. सो दिस स्ट्रेस की वजह से फोर्स क्या है? दिस इज द फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट दिस फोर्स. सो इक्वेट कर दो दोनों को, ठीक है. सो फ्रिक्शनल फोर्स टेंसाइल फोर्स को इक्वेट कर दिया. ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है. आफ्टर डिराइवेशन सी बी एच कट गया, बी एच कट गया, ठीक है. सो एस एफ इंटू 100 ये है. तो एस एफ इज इक्वल्स टू एफ एल गामा सी बाई 2 इंटू 10⁴. इसीलिए यहाँ पे देखो केजी क्या है, हमने ये डिराइवेशन जब किया ये केजी पर मीटर क्यूब में था, एल मीटर में पकड़े थे. वेरस एसएफ को जब डिराइव किया था तो क्या था? एसएफ का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. ये केजी मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में मीटर में है, तो ये वाला क्यों केजी पर मीटर क्यूब में नहीं है, मीटर स्क्वायर में नहीं है? बिकॉज वी हैव डिराइव्ड इन दैट मैनर ओनली, इसीलिए ये जो टर्म आ रहा है 2 × 10⁴, ठीक है. So SF is what? It is the allowable tensile stress in concrete to resist frictional stress. Unit kg per centimeter square. L is length of the slab, ठीक है, in meter. Yeah, spacing of contraction joint in meter. F is coefficient of friction 1.5 if not given. B is slab width in meter. Gamma C is unit weight of concrete in kg per meter cube, which is 2400. Okay. So is it clear how we get this formula? ये क्लियर है? तो कैसे फॉर्मूला आया? एस एफ इक्वल्स टू, ये नोट डाउन करो, एस एफ इक्वल्स टू एफ एल गामा सी बाई 2 इंटू 10⁴. ओके. नाउ लेट अस सी द नेचर. हम जो बोल रहे थे नेचर क्या होगा, वी हैव आई ऑलरेडी डिस्कस दैट ड्यूरिंग समर. ये क्या होता है ड्यूरिंग समर में तुम्हारा, सॉरी ड्यूरिंग विंटर वाला किए थे ना, ये ड्यूरिंग विंटर में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है. तो ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होता है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए इस वाले में होता है. तो सेम ये वाला आउटवर्ड में कर रहा है. सो रेजिस्टिंग सेक्शन में ये टेंसाइल एक्ट कर रहा है, टेंसाइल फोर्स. सो ड्यूरिंग विंटर एसएफ इज टेंसाइल इन नेचर, वेयरएज इन विंटर समर ऑपोजिट हो जाएगा, कंप्रेसिव इन नेचर. ये भी याद रखना है. ओके. So during winter, SF is tension. During summer, SF is C, compressive. Okay. Now this is the question. देखो ऐसे टाइप के questions they may give you. The spacing between the contraction joint of CC pavement is this much. तो ये वाला वैल्यू क्या है? 4.2. The spacing between contraction joint of CC pavement is 4.2. So this is your L. Okay. Capital L. Determine the tensile stress develop in the pavement due to contraction. देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस कुछ नहीं बोला, तुमको पूरा डेफिनेशन ही दे दिया है. क्या? Determine the tensile stress develop in the pavement due to contraction. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है मतलब मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मतलब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, एंड फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने के लिए अंदर में कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेस. Okay. If the coefficient of friction between the bottom of the pavement and the supporting layer is 1.1, अगर नहीं दिया था तो 1.5, and said assume other datas. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या था? SF equals to, what was the formula? SF equals to था frictional stress L gamma C by 2 into 10⁴. ठीक है. हमको क्या क्या लगेगा? L गिवन, F गिवन, एज्यूम अदर डाटा मतलब ये हो जाएगा 2400 kg पर मीटर क्यूब. सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल. तो वट एवर जो भी वैल्यू आएगा, यूनिट क्या होगा इसका? दिस इज kg पर मीटर क्यूब. ओके. L is your 4.2 मीटर. ठीक है. So what is the unit of SF then? As per this equation, what will be the unit of SF? जेठालाल बोलो, শুভজিৎ. এই শুনতে পাচ্ছ কি তোমরা? পুলক তো চলে গেল না আছে? As per this equation, what is the unit of SF? kg per meter square.
ना कि केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर, ना कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर मैम। मीटर स्क्वायर मैम। मीटर स्क्वायर। আবার सी, ये जो फॉर्मूला में डिराइवेशन किया गया है, ठीक है, इट इज डिराइव इन सच अ मैनर कि ये वाला मीटर क्यूब में था, ये वाला मीटर में था, whereas दिस वाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर। बार बार बोल रहे हैं हम, ओके इसीलिए तो देखो यहाँ पे जब डिराइव किए, व्हेन वी डिराइव एस एफ वैल्यू, सी देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, तो दिस इज द एरिया, दिस इज स्ट्रेस। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कट गया, ये केजी में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे सबको मीटर में कन्वर्ट कर, क्योंकि ये वाला मीटर क्यूब में है, तो इसको भी मीटर क्यूब बनाना है, वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब बनाना है, तो इसलिए एच को मीटर क्यूब में बना के ये 100 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला 100 आ रहा है, तो सबको सब्स्टिट्यूट करके ही, तो इक्वेट करके ही तो तुम्हारा एस एफ का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इन केजी पर मीटर क्यूब पकड़े थे, ये लेंथ मीटर में पकड़े थे, और ये वाला केजी पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में पकड़े थे, इसलिए ये जो टर्म है नीचे आ रहा है। क्लियर? सो एस एफ इज इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, हम यही बार बार बोल रहे हैं। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एफ। एल है तुम्हारा 4.2 मीटर, हम दे दिया, ठीक है। एफ है 1.1, स्मॉल एफ, यूनिटलेस, ओके। गामा सी एज्यूम, unit weight of concrete 2400 kg per meter cube, per meter cube, okay. And find SF, and we know SF is equals to क्या है, F into L into gamma C by 2 into 10 to the power 4. So what is the value of SF? ये गामा सी, ओके, दिस इज गामा सी। तो सब्स्टिट्यूट करके व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एस एफ विथ यूनिट, ক্যালকুলেট করছো? হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম। করছো কি করছো না? এত আসছো কি? 0.5544, देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन फिर भी हम केजी पर सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर डिराइव्ड इन दैट मैनर ओनली, कि ये सब मीटर क्यूब में रखा था, ये मीटर में रखा था, और ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखा था, इसीलिए नीचे देखो 10⁴ टर्म आ रहा है, ओके। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एसएफ वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे फ्रिक्शनल स्ट्रेस तुम डेवलप कर सकते हो, ओके। तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, एंड आफ्टर दिस क्लास वी विल स्टार्ट दिस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। ये जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, ये टेबल हमको बनाना है, ओके, हाउ वी विल ड्रॉ दिस टेबल। इसीलिए देखो यहाँ पे कंप्रेशन कंप्रेशन, टेंशन टेंशन लिखा गया है ना, वही कि कहाँ पे कंप्रेसिव होता है, कहाँ पर टेंशन होता है, वो नेचर वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। अभी ब्रेक लेते हैं, वी विल मीट एट 11।